سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت النبی کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ قسط کا اختتام وادی نخلہ کے واقعے پہ ہوا تھا۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 12 سواروں کے ساتھ روانہ کیا اور تاکید فرمائی تھی کہ اس قافلے کی طرف خبر لے کے آنا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور قیدیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب وہ پہنچے تو ان سے باز پرس کی، البتہ جو مال وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ جب یہ واقعہ قریش مکہ کے علم میں آتا ہے تو ان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر جو ہے وہ پہلے حملہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو پچھلی قسط میں جس کا ذکر ہوا تھا کہ ابو سفیان ایک قافلہ تجارتی قافلہ لے کے ملک شام کی طرف جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اس قافلے کا تعاقب کیا، لیکن یہ قافلہ نکل گیا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ یہ قافلہ واپس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید ایک دوسرے صحابی کے ساتھ ان کو ملک شام کی طرف جانے والی شاہراہ پہ ایک مقام پہ معمور کیا تھا کہ جیسے ہی یہ قافلہ واپس آتا ہے آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے۔ یہ دونوں صحابہ وہاں پہ موجود رہے اور جیسے ہی ابو سفیان کا قافلہ وہاں پہ پہنچا تو یہ دونوں صحابی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے واپس آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس تجارتی قافلہ کے اندر تقریباً 1000 اونٹ تھے اور 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان اس تجارتی قافلے میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ تمام لوگ اس تجارتی قافلے کے تعاقب میں ساتھ چلیں۔ نوٹ کر لیجئے یہاں پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ ابھی یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ قریش کا کوئی لشکر بھی ہے جو آ رہا ہے۔ ادھر ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے قافلے کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ تو ابو سفیان یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے ساتھ جو قافلے میں شامل تھا، زمزم نام تھا اس کو روانہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم جا کے مکہ کے لوگوں کو اطلاع کرو کہ ان کے قافلے پر محمد کے ساتھی حملہ آور ہونے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمزم تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کے مکہ پہنچتا ہے اور جاتے ہی پورے مکہ کے اندر وہ منادی کرتا ہے کہ چلو اور اپنے لشکر کو بچاؤ، چلو اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرو۔ قریش مکہ کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو ایک طرف واقعہ ہوا وادی نخلہ کا، دوسری طرف واقعہ یہ ہوا کہ جو ابو سفیان کا لشکر آ رہا تھا اس کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حملے کی اطلاع جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جنگ کی تیاریاں کی جانے لگتی ہیں۔ ابو جہل سب سے آگے ہوتا ہے، سب لوگوں کو گھروں میں جا کے جنگ کی دعوت دیتا ہے اور سب سے یہ کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم چل کے اپنا بدلہ لیں گے اور محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، اب یہ وقت ہے کہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں گے۔ ابو جہل اپنے اس لشکر کو لے کے نکلتا ہے۔ اگر ہم مشرکین مکہ کے لشکر کی تعداد دیکھیں تو 1000 کے قریب لوگ اس میں شامل تھے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی کثیر تعداد تھی، 600 کے قریب اونٹ ان کے پاس موجود تھے اور پورا یوں سمجھے کہ ایک بہترین تیاری کے ساتھ یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ نکلے۔ جو صحابہ رہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا بلکہ لشکر کی طرف تعاقب کا ارادہ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اس وجہ سے کچھ صحابہ رک گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر یہ لازمی قرار نہیں دیا تھا کہ وہ اس کا حصہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ 313 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور یہ 313 صحابہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے ابو سفیان کے لشکر کی طرف گئے تو ابو سفیان نے اپنے اصل رستے کو چھوڑ کے سمندر کا راستہ اختیار کیا اور یوں وہ اپنے قافلے کو بخیر و عافیت مکہ پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ ابھی یہ قافلہ ابو سفیان کا بھی راستے میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ایک بڑا لشکر لے کے آپ کے اوپر حملے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ان سے مشاورت کی جاتی ہے کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، کیا ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، یا مشرکین مکہ کا جو لشکر آ رہا ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ مسلمان لشکر کا سامنا کریں۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ ہمیں ابو سفیان کے لشکر کو قابو کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے لشکر کا سامنا کرنا قبول کیا اور مسلمان اس طرف روانہ ہوئے۔
नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के करीब जाके एक मकाम पर ठहरे। इधर अबू सफियान का काफ़िला जब मक्का पहुंच गया तो उसने इत्तला भेजी अबू जहल को, क्योंकि मुशरिकीन का लश्कर तो निकल चुका था। तो उसने मुशरिकीन को, अबू जहल को इत्तला भेजी कि मैं चूँकि खैरियत से पहुंच गया हूं, इसलिए आप लोग वापस आ जाएं। उतबा बिन रबिया इस मौके पे अबू जहल से ये कहता है कि हम अपने काफ़िले की हिफाजत के लिए निकले थे, अब जबकि काफ़िला खैरियत से पहुंच चुका है तो हमें वापस जाना चाहिए। तो अबू जहल कहता है कि नहीं, अब तो हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि अपने चचा के बेटों को सबक ना सिखा दें, और ये जो ताकत एक रियासत बनने चली है मदीना के अंदर, हम इसका ख़ात्मा ना कर दें। साथ में वो उतबा बिन रबिया से ये कहता है कि लगता है जंग से तुम्हारा दिल जो है वो सीना फूल गया है खौफ से, इस वजह से तुम ऐसी बात कर रहे हो। उतबा बिन रबिया अबू जहल को ये जवाब देता है कि फिर ये तो जंग ही बताएगी कि किसका सीना फूला है और कौन जमा मर्दी से इस जंग के अंदर लड़ा है। बहरहाल मुशरिकीन का ये लश्कर बढ़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के लश्कर से पहले ही बदर के करीब पहुंच चुके थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु सहाबा में से एक जमात को मुशरिकीन की जासूसी के लिए मामूर करते हैं कि जाएं और उनकी खबर लेके आएँ, और मुसलमान बदर के करीब जो कुआं है उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सहाबा का जो गिरोह कुएँ पर कब्ज़ा करने के लिए गया, वहाँ पर उसको 2 ग़ुलाम नज़र आए। ये बुनियादी तौर पर दोनों ग़ुलाम मुशरिकीन के लश्कर में से थे। मुसलमानों ने यह समझा कि शायद ये अबू सफियान के काफ़िले के 2 लोग हैं। वो इनको उठा के अपने पास ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। सहाबा उनसे पूछते कि तुम कौन हो? वो जवाब देते कि हम ग़ुलाम हैं। सहाबा उनको मारते कि नहीं, तुम अबू सफियान के काफ़िले के साथ थे। जब उनको मारा जाता तो वो ये मान लेते कि हाँ, हम अबू सफियान के काफ़िले के साथ थे। जब उनको छोड़ा जाता तो वो कहते कि नहीं, हम तो एक और काफ़िले के साथ हैं जो यहाँ कुएँ के करीब ही मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो झूठ बोलते हैं तो तुम उनको मारते हो, और जब वो सच बोलते हैं तो तुम उनको छोड़ देते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों ग़ुलामों से पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मक्की लश्कर के साथ आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, उनकी तादाद कितनी है? तो उन दोनों ग़ुलामों ने जवाब दिया कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितनी तादाद है? वो अदद नहीं बता सके, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि उनके यहाँ कितने ऊँट ज़िबा होते हैं? तो उन दोनों ग़ुलामों ने कहा कि एक दिन 9 ऊँट ज़िबा होते हैं और दूसरे दिन 10 ऊँट ज़िबा होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि मुशरिकीन मक्का के लश्कर की तादाद 1000 के करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये खुशखबरी दी कि मक्का ने अपने तमाम जिगर गोशे तुम्हारी तरफ डाल दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकाम का दौरा किया और वो जगहें दिखाईं कि जहाँ पर बड़े बड़े मुशरिकीन ने कत्ल होना था। यूँ समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और बताते सहाबा को कि यहाँ पे फ़लाँ मुशरिक मारा जाएगा, ये फ़लाँ मुशरिक के कत्ल की जगह है, जिससे सहाबा के हौसले बुलंद हुए। मुशरिकीन मक्का ने अपने एक जासूस को रवाना किया कि जाओ और मुसलमानों के लश्कर की तादाद का पता करके आओ। वो आता है और एक टीले की ओट से मुसलमानों के लश्कर की तादाद का अंदाज़ा करता है, और वापस जब जाता है तो मुशरिकीन मक्का से ये कहता है, अबू जहल से वो मुखातिब करके कहता है कि मैं एक ऐसा लश्कर देख के आया हूँ कि उनकी हर एक के ऊपर मौत सवार है, और अगरचे वो तादाद में कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम में से किसी को भी मारे बग़ैर यहाँ से वापस जाएंगे, और जब तुम्हारे बड़े बड़े लोगों को मार दिया जाएगा तो फिर ज़िंदगी का क्या सवाद बाकी रहेगा। अबू जहल उसको कहता है कि वो नाउमीदी और मायूसी ना फैलाओ, तुम लोगों को खौफ और कपकपी में तारी कर रहे हो, जबकि तुम्हारा अपना दिल खौफज़दा हो चुका है। वो कहता है कि मैं खौफज़दा नहीं हुआ, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु का भी है। उनके वालिद जो हैं वो जब वहाँ से रवाना हुए मक्का से, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू जंदल को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और वो जाके मुलाकात करते हैं। तलवार हाथ में होती है, न्याम हाथ में होती है, और अपने बेटों से मुलाकात करके कहते हैं कि मक्का के तमाम लोग मोहम्मद से जंग करने के लिए निकले हैं, उनके बेटे उनके साथ हैं, और मेरी हालत देखो कि मैं अपने बेटों के बगैर इस जंग में जा रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि तुम इस जंग में मेरे साथ खड़े होते। हज़रत अब्दुल्ला बिन सुहैल और हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाप के जब ये बात सुनते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि मैं आपके बारे में कोई कलमात नहीं कहूँगा। सुहैल बिन अम्र ये कहता है कि क्या तुम अपने बाप को इस हालत में रुखसत करोगे कि उनके बारे में कोई बात नहीं करोगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं कैसे कोई बात करूं? अगर मैं ये कहूं कि मुसलमानों को फ़तह हो तो बहरहाल आप मारे जाएंगे और मेरा बाप इसमें कत्ल होगा, और ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो जहन्नुम की आग का हिस्सा बनेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं आपकी फ़तह की एक दुआ मांगता हूँ तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हो, बल्कि इसके बदले में मुशरिकीन मक्का के ऊपर लानत पड़े और इनको शिकस्त होनी चाहिए। तो ये वो मौका है कि आप देखें कि एक बाप और बेटे के दरमियान मुकालमा हो रहा है, और क्या ईमान की कैफियत है।
कुछ ही देर गुजरती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन में ख्याल पैदा होता है और वो अपने बाप से कहते हैं कि अच्छा मेरा दिल बदल गया है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जंग में शरीक हूँगा। सुहैल बिन अमर खुश हो जाता है, अपने बेटे को साथ लेता है, बेड़ियाँ खुलवाता है और उनको तलवार दी जाती है, म्यान दी जाती है। लेकिन जैसे ही ऐन लश्कर में वो पहुँचते हैं, बदर के करीब पहुँचते हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सुहैल मक्की लश्कर से निकल के घोड़ा दौड़ाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल हो जाते हैं और अपने बाप के ख़िलाफ़ जंग में शरीक होते हैं। तो ये वो सहाबा के दिलों की कैफियत थी, ये वो ईमान का नूर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में भरा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़बंदी की और जब तमाम सफ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरतब कर दी और अलम उन सहाबा के हवाले कर दिए जो तमाम गिरोहों पर मुकर्रर किए गए थे। मुहाजिरीन का अलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा एक ऊंचे टीले के ऊपर नस्ब किया जाता है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की पूरी तैयारी कर ली तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दर्दनाक दुआ की और इतने ईमान अफरोज़ दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को मुखातिब करके कहा कि या अल्लाह, ये मुट्ठी भर लोग हैं, अगर आज ये मार दिए गए और ये बाकी ना रहे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। और ये वो मौका है कि जिसके ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गिड़गिड़ा के दुआ करते थे तो आप वसल्लम की चादर ज़मीन पे गिरती थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो चादर उठा उठा के आप वसल्लम के कांधों पर रखा करते थे। थोड़ी ही देर गुजरती है कि एक हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका जब आया तो आप वसल्लम ने मुस्कुरा के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखा और कहा, मुबारक हो, 7वें आसमान से अल्लाह की मदद आई है। और उसके बाद फिर तारीख़ ने वो मंज़र देखा है कि 313 बेसरो सामानी की हालत में, बेसरो सामानी की हालत में 1000 के लश्कर से जब टकराए हैं तो सफ़ों की सफ़ें उलटती गई हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरीके से आगे बढ़े कि मुशरिकीन कहा करते थे कि वो तुम्हारे दरमियान कौन था जो शुतुरमुर्ग का पर लगाए हमारे दरमियान आता था। और जब सहाबा ने बताया कि वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, तो मुशरिकीन कहते कि हाँ, वो शख्स था जिसने हमारी सफ़ें उलट के रख दी थी। आगाज़ इस तरीके से होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का मुबारज़त के लिए पुकारते हैं। उतबा बिन रबिया जो बड़ा सरदार था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा था कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, वो आगे बढ़ता है, उसका भाई शीबा आगे बढ़ता है और उसी का बेटा उतबा का बेटा वलीद आगे बढ़ता है। ये 3 लोग जब आगे आते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अंसार आगे जाते हैं। 3 अंसार जब उनके मुकाबले में आते हैं तो उतबा बुलंद आवाज़ में ये कहता है कि मोहम्मद, ये लोग हमारे मुकाबले के नहीं हैं, हमारे मुकाबले में हमारे पल्ले के लोग हमारे। और उतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहता है कि मोहम्मद, ये लोग हमारे वज़न के नहीं हैं, हमारे मुकाबले में हमारे बराबर के लोगों को भेजो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका इंतखाब किया? अपने सगे चचा हज़रत हमज़ा को आगे भेजते हैं, अपने सगे कज़न हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा को आगे रवाना करते हैं। ये 3 लोग मुसलमानों की तरफ से आगे आते हैं। वलीद का मुकाबला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु करते हैं, उतबा का मुकाबला हज़रत अबू उबैदा करते हैं और शीबा का मुकाबला हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु करते हैं। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो एक ही वार में अपने दुश्मनों को जहन्नुम हासिल किया। हज़रत अबू उबैदा और उतबा के मुकाबले में एक वार दोनों ने एक दूसरे पे किया, जिससे दोनों ज़ख्मी हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंज़र देख रहे थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली आगे बढ़ते हैं और उतबा बिन रबिया का सर कलम कर देते हैं। हज़रत अबू उबैदा इस गज़वा में ज़ख्मी हुए और कुछ दिन के बाद इनकी शहादत इस जंग के नतीजे में हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरमुसरत मौके के ऊपर जब मुसलमानों को पहली फ़तह हुई तो सहाबा के जज्बात उमड़ आए और वो बिल्कुल ये जान चुके थे कि अल्लाह की नुसरत अब हमारे साथ है। मुशरिकीन ने जब ये मंज़र देखा तो वो गुस्से में पागल हुए और अबू जहल ने जंग का ऐलान किया और उसके बाद आम जंग शुरू हो गई। क्या मंज़र है कि 1000 का लश्कर 313 की तरफ जब बढ़ता है तो उसके एतमाद की एक और ही हालत होती है। मुशरिकीन को ये लगता था कि हम आनन फ़ानन इनको कत्ल कर देंगे, यहाँ तक कि अबू जहल ने गरूर में आके ये भी कहा कि तुम मोहम्मद के साथियों को कत्ल न करना बल्कि रस्सियों में बांधना ताकि हम इनको घसीटते हुए मक्का की तरफ लेके जाएंगे। और इधर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से यह कहा कि आज अगर तुम बेजिगरी से लड़ोगे तो इसके बदले में तुम्हें जन्नत की बशारत है। और सहाबा फिर लड़ते हैं, जिनके पास तलवारें हैं वो तलवारों से लड़ते हैं, जो घोड़ों के बगैर हों वो पैदल लड़ते हैं, जो ऊँटों के बगैर हैं वो पैदल मुकाबला करते हैं, और जिनको तलवार नहीं मिलती। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से आता है कि
कि उनकी तलवार टूट गई। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तलवार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक टहनी उनको देते हैं कि उकाशा अब यही है, इसी से तुम जंग करो। और हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु जब उस खजूर की टहनी को एक दुश्मन पे मारते हैं तो उसी लम्हे वो टहनी एक तलवार के अंदर बदल जाती है, और वो उनकी तलवार इतनी बाबरकत उनके लिए साबित होती है कि उस तलवार के ज़रिए से उस जंग में उन्होंने कई मुशरिकीन के सर कलम किए, और ये तलवार शहादत तक उनके पास रही, और बाद में उनकी औलाद के पास वो तलवार मौजूद रही। ये वो तलवार थी कि जो एक खजूर की टहनी को जब ईमान नसीब होता है तो वो तलवारों के अंदर बदल जाया करती है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस बेजिगरी से मुकाबला किया, और हकीकत यह है कि ये सिर्फ़ बहादरी का मसला नहीं था बल्कि ये साबित कदमी का मकाम भी था। उसकी वजह यह है कि मुकाबले में आपके अपने रिश्तेदार आए हुए थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुकाबले में उनके अपने भाई और अपने बेटे आए हुए थे, उनके अपने वालिदैन आए हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब उतबा बढ़ा था मुबारज़त के लिए तो उतबा का बेटा हज़रत अबू हुज़ैफ़ा जो हैं वो मुसलमान हो चुके थे। जब उतबा मुबारज़त के लिए बढ़ा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने इजाज़त मांगी कि मैं अपने वालिद के मुकाबले में जाता हूँ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बेटे को, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, मुखातिब करके कहा था कि आओ, और वो वहाँ से आंखें चुरा के भाग जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सगे मामू को कत्ल किया था। और इतना ही नहीं, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वो वाक़या है कि जंग के बाद जब तमाम कैदियों को रस्सियों में बांधा जा रहा था, जकड़ा जा रहा था, हज़रत मुसअब बिन उमैर वहाँ से गुजरते हैं और उनके भाई को एक अंसारी सहाबी रस्सियों से बांध रहा होता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर उसकी तरफ देख के कहते हैं, इसको ज़रा मजबूती से बांधना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, तुम्हें बड़ी दौलत मिलेगी। और हज़रत मुसअब बिन उमैर के भाई उनसे कहते हैं कि अपने सगे भाई के बारे में तुम्हारी यही वसीयत है? और हज़रत मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई। हज़रत मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, बल्कि ये अंसारी जो तुम्हारे हाथ बांध रहा है ये मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। ये है वो ईमान की कैफियत, ये है वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। हम जब ये कहते हैं कि 313 को फ़तह हुई तो ये 313 कोई मामूली लोग नहीं थे, ऐसे थे वो 313 के जिनको फ़तह नसीब हुई, और ऐसे थे वो 1000 के जिनको शिकस्त हुई। यही वो वाक़या है, यही वो मंज़र है कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था ना कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और फ़रिश्तों की फ़ौज आई थी। सहाबा कहते हैं कि हम अपनी तलवारें उठाते थे और हमारी तलवारें अभी दुश्मन को छूती नहीं थी कि उनके सर कलम हो जाते। और जिन लोगों को वो पकड़ के लाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा ये कहते थे कि ये कैदी मैं पकड़ के लाया हूँ, और वो कैदी ये कहते थे कि नहीं, हमें इन्होंने नहीं पकड़ा, बल्कि वो तो कुछ और ही लोग थे कि जिन्होंने हमसे तलवारें छीनी और हमें रस्सियों में जकड़ा और इनके हवाले कर दिया। सहाबा कहते कि नहीं, इनको हमने पकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि खामोश रहो, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी मदद के अंदर आए थे। तो ये वो मंजर देखा, और कैसे कैसे मनाजिर ग़ज़वा बदर के अंदर आए। उमैया बिन खल्फ जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का मालिक था और उनको तकलीफ़ें दिया करता था, इसी जंग में आता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के जब उसके करीब से गुजरते हैं तो उमैया बिन खल्फ खौफज़दा होता है। वो फ़ौरन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कहता है कि मुझे कैदी बना लो, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं तुम्हें फ़िदिये में दूंगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ उसको कैदी बना लेते हैं कि मुसलमानों को इससे दौलत मिलेगी और रियासत मजबूत होगी। जब उमैया बिन खल्फ और उसके बेटे को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र पड़ती है। हज़रत बिलाल कहते हैं कि ये रहा मुशरिकीन का सरदार, ये रहा अल्लाह के रसूल का दुश्मन, अब या तो मैं रहूँगा या ये रहेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि नहीं, मैंने इसको कैदी बनाया है, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं रुकते, यहाँ तक कि सहाबा जमा हो जाते हैं और तमाम सहाबा मिल के उमैया बिन खल्फ और उसके बेटे का सरकलम कर देते हैं। ये सादत नसीब हुई, लोगों को अपने दुश्मनों को अपने हाथों से कत्ल करने की सादत इस ग़ज़वा के अंदर नसीब हुई। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के लिए जो दुआ की थी वो इस मौके पे पूरी हुई कि किस तरीके से मुसलमानों को फ़तह हुई। सिर्फ़ 14 सहाबा शहीद हुए और इसके मुकाबले में मुशरिकीन के 70 लोग गिरफ़्तार हुए, जबकि 70 के करीब ही उनके लोग मारे गए। इसी हालत के अंदर मक्का के लोगों ने बदर के मैदान को छोड़ा और तारीख़ रकम हुई कि 313 ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे सहाबा से यह कहा कि कौन है जो अबू जहल की ख़बर लेके आएगा। अबू जहल के हवाले से तफसीलात मारूफ़ हैं कि किस तरीके से हज़रत मुअव्विज़ और हज़रत माज़ 2 नौजवान सहाबा थे कि जिन्होंने जाके अबू जहल को कत्ल किया था, और वो जो पूरे लाओ लश्कर के साथ आया था और एक पूरी बाढ़ उसने अपने गिर्द बनाई हुई थी। ये 2 नौजवान सहाबा जाते हैं और उसको जहन्नुम वासिल करके आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के हवाले से आता है कि वो जाते हैं और जब अबू जहल के करीब पहुँचे तो अभी उसकी सांस चल रही थी, उसकी गर्दन पे पाँव रखते हैं और
ابو جہل یہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ کا انجام کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فتح ہوئی ہے۔ تو ابو جہل یہ کہتا ہے کہ بہت برا دن ہے جو ہم پہ گزرا ہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے کہ میری گردن ذرا اونچی جگہ سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک سردار کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کیا گیا ہے۔ یہ اس کے غرور کی کیفیت تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، امیہ بن خلف مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، شیبہ بن ربیعہ مارا گیا، ولید بن عتبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا۔ تمام بڑے سردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکہ کی گلیوں میں اٹھ کے کھڑا ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، لاشیں اس کنویں میں پڑی تھیں جو بدر کے قریب تھا۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جب عتبہ کی لاش کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے تو حضرت حذیفہ جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، ان کا دل اس موقع پہ غمزدہ ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے اپنے والد کے حوالے سے تمہارے دل میں کچھ جذبات آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں واللہ میں اس بات پہ غمزدہ نہیں ہوں کہ میرے باپ کو اس جنگ میں مارا گیا، میں اس بات پہ غمزدہ ہوں کہ میرا باپ ذہین آدمی تھا، مجھے امید تھی کہ یہ اللہ کے دین کو قبول کرے گا، لیکن آج وہ اس حالت میں ہے کہ اس کی لاش کو انہی مشرکین کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر کے مقام پہ قیام فرمایا، قریبی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، اور پوری دھاک یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی اس نتیجے میں بیٹھی، اور 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے بدر کے مقام سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر صف ماتم بچھا، مدینہ کے اندر خوشخبری پہنچی۔ وہ منافقین جو یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا خاتمہ ہوگا، ان کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو ان کے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بعد انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور پھر ایک نیا باب شروع ہوتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا سامنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے تمام رداد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر